Hello students, how are you? Hope you all are fine, enjoying at home. So today we are going to start a very important topic of class 12 mathematics, and that is the integral calculus, or you call it integration. Before that, we have studied about differentiation, and this process, integration, is called antiderivative or anti-differentiation, means opposite of differentiation. How? Let's see. Suppose we have a function y equal to, let us take any function, x square minus 5x plus 6. Okay? If I find the derivative dy by dx, so it is 2x minus 5. No problem. So this dy dx is actually derivative of this function. Clear? Now the question is, if I want to go back to y, means from this derivative I want to get the original function, means from this dy dx I want to get y, then is there any process? And that process is actually what? That process is actually integration. How? Let's see. So dy is equal to what? 2x minus 5 dx. Okay, simple. Now by the formula we are going to study, जैसे कि हम लोग देखे थे कि डेरिवेटिव में बहुत सारा फॉर्मूला था, ठीक उसी जैसे इंटीग्रेशन में भी इनफैक्ट उससे ज्यादा फॉर्मूला है. अब अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करें, अभी हम फॉर्मूला दिखा देंगे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा 5x. लेकिन तुम बोलोगे सर पर ये तो +6 था, +6 कहां से आएगा? तो +6 के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में क्या लिख देंगे, +c लिख देंगे. मतलब +c का मतलब होता है कि जब इसका हम फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहां पर एक हमको कांस्टेंट भी मिलेगा. उस कांस्टेंट का वैल्यू एक्चुअली हम लोग इंटीग्रेशन से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहां पे लिख देंगे +c. c कैन बी एनी कांस्टेंट, 6, 5, 1, 2 और इवन 0. ओके, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर. तो दिस इज, तो वी आर गेटिंग दिस फंक्शन आउट बाय द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन. तो डेरिवेटिव का ऑपोजिट होता है इंटीग्रेशन. हम लोग एक फंक्शन को डेरिवेटिव किए, ये मिला. अब इससे वापस जाने का जो रास्ता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन इज एक्चुअली व्हाट? एंटी डेरिवेटिव. हो गया? इज इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पार्ट. तो पहले हम बता दें कि इंटीग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स. One is called the indefinite integral, that is we are going to start today, indefinite integral, and after that we will start definite integral. So definite integral is something else which you have seen in physics also. Suppose we put the values here 0, 1, x square dx. So when it is having the values, these are called the limits, then this will become what? तब ये बन जाएगा definite integral or definite integral, whatever you call it. So, but we are going to study today or in the subsequent videos, because this is a very big part. So I will teach you this chapter very properly, slowly, so that we can do maximum sums. And this is the first part. In this first part, we are going to study about what? About the simple method of differentiation, integration. इंटीग्रेशन में बहुत सारे पार्ट्स हैं. जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल एंटी डेरिवेटिव, उसके बाद आएगा सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद आएगा बाई पार्ट्स, उसके बाद आएगा पार्शियल फ्रैक्शन, और उसके बाद और भी स्पेशल इंटीग्रल्स है. ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है. तो हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द सिंपलेस्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट, एंटी डेरिवेटिव. ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, लेट अस राइट सी सम फॉर्मूला. फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला इज एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव. The formula of integration is opposite of derivative. Suppose ddx of x square, x to the power n, is what? N x to the power n minus 1. ddx of x to the power n is what? N x to the power n minus 1. So if I integrate it, so x to the power n dx will be what? X to the power n plus 1 by n plus 1.
तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि जब हम कोई फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो उसका पावर 1 डिक्रीज हो जा रहा है, और इंटीग्रेशन करने से क्या हो रहा है, उसका पावर 1 इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक, अच्छा, बट दिस इज देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, n कैन नॉट बी -1। अगर n -1 है तो क्या होगा, तब उसका क्या होता है, log x। हम लोग क्या पढ़े थे, ddx ऑफ log x कितना होता था, 1/x। तो सी द प्रोसेस हाउ इट इज रिवर्स, उल्टा कैसे हो रहा है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ठीक है, log x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/x होगा, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। log x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन log x। ओके, जैसे ddx ऑफ e टू द पावर x क्या होता था, सेम, तो यहां पर भी सेम ही रहेगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर x क्या होगा, सेम। ओके, नो चेंज। अच्छा, तो ये हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में चलते हैं। ddx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होगा, माइनस ऑफ cos x। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कॉस, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस, या तुम बोल सकते हो कि माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस, बात तो की हुआ। अच्छा, ddx ऑफ साइन x क्या होता है, cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, sin x। डोंट कंफ्यूज, यहां पे स्टूडेंट लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ddx ऑफ cos x माइनस sin x होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x होता है, तो ये जगह पे कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो डेरिवेटिव में cos का माइनस साइन होता है, इंटीग्रल में cos का साइन ही होगा। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल ऑफ ऑल फंक्शंस। जैसे हम लोग क्या डेरिवेटिव में क्या देखे थे, tan का, sec का, cot का, सब का, पर वो चीज यहां पे नहीं आएगा। यहां पे हम लोग जैसे अगर तुमको अभी बोले कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x, हाँ वी विल डू इट लेटर बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। tan x का इंटीग्रेशन को कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अभी नहीं है, हम लोग देखेंगे जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो इसीलिए हम लोग हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx क्या होता है, tan x। कैसे, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx माइनस cot x। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इक्वल टू sec x। ओके ओके, हाँ, प्लस सी, डोंट फॉरगेट टू राइट प्लस सी इन ऑल केसेस। तो प्लस सी इज देयर, जहां भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे प्लस सी लिखते जाएंगे। अच्छा, तो जैसे sec x tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx इज इक्वल टू माइनस cosec x। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सम इनवर्स। इनवर्स, एज वी नो, हम लोग इनवर्स में क्या पढ़े थे, ddx of sin inverse x। If you have not written, please pause the video and write the formulas. ddx of, अच्छा, 1/√1 minus x square dx क्या होता है, sin inverse x। कैसे, हाउ, बिकॉज हम लोग क्या पढ़े थे पहले, ddx of sin inverse x क्या होगा, 1/√1 minus x square। ठीक है, तो ये क्या आ गया। अच्छा, और क्या पढ़े थे, ddx of tan inverse x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan inverse x। ओके, तो these are some formulas, a very short part which we require in today's video। आज के वीडियो में जो जो फॉर्मूला का जरूरत पड़ रहा है हमसे उतना ही लिखे, क्योंकि इंटीग्रेशन इज अ वेरी बिग पार्ट, और इसमें बहुत सारे फॉर्मूला एक साथ हम नहीं लिख रहे। जैसे जैसे हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग
जब जो पार्ट करेंगे उसका फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, तो आई होप यू हैव रिटन ऑल द फॉर्मूलाज एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डू सम सम्स। ओके, लेट्स डू सम सम्स। तो लेट मी टेल यू, जब हम लोग डेरिवेटिव किए थे तो हम लोग पहले दिन क्या सीखे थे? प्लस माइनस रूल, प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल। तो यहां पे अभी प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल नहीं सीखना है। यहां पे क्या करना है कि लेट u कॉमा v बी टू फंक्शंस ऑफ x। तो इंटीग्रेशन u प्लस या माइनस v dx अगर है तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन u dx प्लस या माइनस इंटीग्रेशन v dx। ओके, अगर डिवाइड में है या मल्टीप्लाई में है तो उसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अगर u इंटू वी में क्या हो रहा है, u बाई वी में क्या हो रहा है, उस सब चीजों को हम लोग बाद में डील करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ प्लस माइनस रूल लेके सम्स को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला सम एक्स क्यूब, फर्स्ट सम इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। ओके, ये पहला क्वेश्चन है, सिंपल सम। देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, u प्लस v प्लस w इस फॉर्म में लाएंगे। कैसे? इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 4x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। ओके, नाउ ये कितना आया? x dx। अब दिस फॉर्मूला अलग अलग कर लो। 5 कांस्टेंट है, जैसे आपको कोई कांस्टेंट होता तो क्या करते थे? जैसे 2 sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 इंटू डेरिवेटिव sin x। तो यहां पर वही है, अगर रह गया तो ये कांस्टेंट को क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। ये प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 2 dx। ओके, अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ दिस सम, x टू द पावर n dx। तो यहां पे n के जगह पर क्या है? 1 है। यहां पे n की जगह पर क्या है? 1 है। तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 2। अच्छा, 5ds हम लोग डेरिवेटिव में क्या पढ़े हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, पर इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 5 का मतलब क्या हो गया? 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इंटीग्रेशन dx क्या होता है? x होता है। कैसे x होता है मैं इस सम के बाद में बता रहा हूं। प्लस 4, व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन ऑफ दिस रूल? n कैन नॉट बी -1। अगर -1 है तो क्या होगा? 1 बाई लॉग x। तो 4 इंटू 1 बाई लॉग x, x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड x। लॉग को मॉड में लिख देंगे, क्यों? बिकॉज वी नो कि log x इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड ओनली इफ x इज पॉजिटिव नंबर। log x में x का डोमेन क्या होना चाहिए? log x का डोमेन क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर। और यहां पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई करो तो -2 प्लस 1 क्या होता है? -1 बाई -1 प्लस c। तो इसको हम लोग जरा अरेंज करके लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4 लॉग मॉड x माइनस 1 बाई एक्स प्लस c। ओके, तो ये हो गया हम लोग का पहला सम। अब देखो एक बात मैं बता दूं, इंटीग्रेशन dx वाली बात जो आ रही है, व्हाट इज x एंड व्हाट इज dx? मेनली साइंस स्टूडेंट लोग जानते हैं, इतने सालों से हम लोग फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि dx, dl, dq होता क्या है। मान लो x क्या है? x इज अ बिग थिंग, कोई भी, तो dx क्या होगा? उसका एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, छोटा सा पार्ट हो गया क्या? dx। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज किसी का बर्थडे पार्टी चल रहा है, ये बर्थडे केक है। अब इस केक को बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग, 400-500 लोग आए थे, और केक थोड़ा छोटा पड़ जा रहा था। तो क्या किया गया
केक का छोटा छोटा टुकड़ा बनाएंगे, सबको देना है, नहीं तो कोई माइंड कर लेंगे। ओके, एक केक का, देयर वाज अ बिग बर्थडे पार्टी, मेनी पीपल केम बट द केक वाज स्मॉलर। तो क्या किया जाएगा, और वी विल मेक स्मॉल पीसेस ताकि सबको कम से कम एक टुकड़ा पड़े। तो वो जो एक पीस बना ना, ये पूरे केक को हम एक्स मान ले रहे हैं, तो वो जो एक पीस बना जो सबको बांटा गया, उसको क्या करते हैं, उसको कहेंगे dx। तो व्हाट इज dx? ए स्मॉल पार्ट ऑफ x। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन, ये जो साइन है ना, ये साइन का मतलब क्या है? ये एक्सटेंडेड s है, ये एक एलोंगेटेड s है। s का मतलब समेशन, मतलब एडिंग, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? समेशन। तो जब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन dx का, तो व्हाट दैट मीन? अब अगर मान लो मैंने क्या किया, सब लोगों को बांट दिया गया, कोई कारणवश बोला गया कि आप लोग केक को मत खाइए, कुछ कारण से सब वापस दे दीजिए। सब लोगों ने क्या किया, उस पीस को वापस दे दिया। और इफ पॉसिबल, मान लो कि जैसे जैसे काटा गया था वैसे वैसे हम लोग उस पीस को, यहां का पीस को यहां आ गया, यहां आ गया, सब पीस अपनी जगह पे आ गया, तो क्या हो गया, सब पीस को यानी कि सब dx को हम जोड़ दिए। ये एक dx है, ये एक dx है, ये एक dx है, ये एक dx है, सब dx को जोड़ देंगे। तो जब हम सब dx को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट द एंटायर x, पूरा x मिल जाएगा। इसीलिए इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू क्या होता है? x होता है। मींस dx क्या है? x का ही तो छोटा सा पार्ट है। और जब हम सभी पार्ट्स को, जैसे मान लो बच्चों लोगों में जो पजल होते हैं, अलग अलग टुकड़ों को जोड़ना रहता है, जंबल, अगर सही से जोड़ा जाए तो फिर से वो फिगर तैयार हो जाता है। तो एक एक टुकड़े को, पीस को dx मान लो, तो व्हेन वी आर असेंबलिंग ऑल द dx वी आर गेटिंग व्हाट? द x। तो यही रीजन है इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x। ओके, नाउ वी मूव टू द सेकंड सम। क्वेश्चन नंबर 2, e to the power 6 log x minus e to the power 4 log x by 4 3, अच्छा, here it is 5 e to the power 4 log x minus e to the power 3 log x. Now we have studied in class 11 that e to the power log x is equal to x होता है, और 6 log x का मतलब क्या हो गया? 6 log x का मतलब क्या हो गया? x to the power 6। तो इसका मतलब क्या होगा एक्चुअली? e to the power log x to the power 6। तो ये टर्म क्या बन जाएगा? e to the power log x to the power 6। तो व्हाट इज द रूल? e to the power log x is equal to x। तो e to the power log x to the power 6 will become what? Only 6 to the power 6। तो इस पूरे चीज को हम क्या लिख सकते हैं? x to the power 6। इसको क्या लिखेंगे? x5, ये क्या आएगा? x4, और ये आएगा x3। ओके, क्लियर, सिंपल। अब ऊपर से x5 कॉमन लो, x5 ने x4 x स्क्वायर कॉमन लो, x स्क्वायर, व्हाट विल यू गेट? x4 माइनस x3, यहां पे भी क्या बना? x4 माइनस x3। तो ये कट गया, क्या मिला? दैट इज व्हाट? x³ बाई 3 प्लस c। ओके, तो ये आ गया हम लोग का सम, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। तो सेम फॉर्मूला पता ही हम लोग को, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, x टू द पावर n dx का ये फॉर्मूला है। ओके, तो वही फॉर्मूला अप्लाई किए, 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। ओके, दिस इज द आंसर। अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, x4 बाई x स्क्वायर प्लस 1। ओके, x4 बाई x स्क्वायर प्लस 1
dx। अब देखो, अब क्या करोगे? तुमने कहा कि सर तो डिवाइड वाला रूल तो हम जानते नहीं है। यस, सही बात है। जैसे एज वी हैव डन डेरिवेटिव u by v, we can't do that. Now the trick starts. x4 minus 1 plus 1 by x square plus 1. Okay. Clear? x4 minus 1. तो we have applied the formula of what? a square minus b square. क्या होता है? a minus b into a plus b. अब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा? x square minus 1 plus 1 by x square plus 1 dx. ठीक है? This whole thing by this. तो this will cancel. Okay. अब इसको अलग कर लो. x square dx minus integration dx plus 1 by x square plus 1 dx. तो क्या होगा? x cube by 3 minus x, and this is the inverse function I told in the beginning. If you have written the formula, tan inverse x plus c. Okay. So this is the total sum. Question number 3. Please note it down फटाफट, and then we will move to the next sum. Question number 4. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4. Integration 1 by, see, question number 4 is what? Integration 1 by 1 minus sin x dx. अच्छा, एक बात बोल दो, जैसे कि हम लोग डेरिवेटिव में देखे थे, we have been applying the formulas of trigonometry. Trigonometry was very important there. वहां पे हम लोग trigonometry का फॉर्मूला अप्लाई किए थे. यहां पर भी इंटीग्रेशन में भी हम लोग को मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, कंपाउंड एंगल, इन सब फॉर्मूला का जरूरत पड़ता रहेगा. ये तो सम सिंपल है. रैशनलाइज करो. 1 प्लस साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. तो 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स. तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स. ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए. क्लियर? तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स. और ये क्या होगा? यहां पे कॉस स्क्वायर है, तो साइन बाई कॉस तो tan होता है, और एक तो जो कॉस बच गया उसके लिए वो क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस इज व्हाट? सेक एक्स. तो दिस विल बिकम tan x sec x dx. ठीक है. अब sec square x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला व्हाट वी हैव रिटन? tan x and this is what? sec x plus c. So this is the sum. तो just matter of the formulas. सब formulas का खेल है, कुछ नहीं. तो 1 by cos square sec square integration sec square tan x, and this is what? sin by cos square. Cos square means what? cos into cos. तो एक sin by cos तो tan हो गया, और एक जो cos बच गया वो 1 by cos sec हो गया. ठीक है. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4. अच्छा, now we'll go to question number 5. Okay, question number 5. See, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 is integration sec square x, sorry, sin square x cos square x dx. ये क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन sin square x cos square x dx. अब देखो, हम लोग कंपाउंड एंगल में क्या पढ़े? 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है? 2 cos square x. वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्लीज नोट इट डाउन. इन द एंटायर कोर्स ऑफ इंटीग्रेशन यू विल यूज इट, एंड वी हैव आल्सो यूज्ड इन डेरिवेटिव. एंड 1 माइनस cos 2x क्या होता है? 2 sin square x. ठीक है. तो sin square x का वैल्यू तो क्या हो जाएगा?
इस फॉर्मूला के अनुसार 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 हो गया। ये किसका वैल्यू निकला? साइन स्क्वायर एक्स का, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। और कॉस स्क्वायर एक्स का क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। ठीक है, क्लियर? अब जरा सोचो, ये किस फॉर्म में आ गया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। डिनोमिनेटर में क्या है? 2 प्लस 2 इंटू 2 4, तो 1 बाई 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x। ओके, अब देखो, अब कॉस स्क्वायर 2x क्या होता है? जैसे मान लो कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर x क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, कॉस स्क्वायर x क्या होगा? 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। लेकिन यहां पर अगर 2 है, अगर यहां पे पहले से 2 है, तो यहां पे क्या बन जाएगा? ये 4 बन जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं तुमको बोलूं कि 1 प्लस कॉस 4x क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर 2x, तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। ये पूरा एक साथ आ गया dx। ओके, क्लियर? अब इसका जरा तुम एलसीएम अगर ले लोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 8, 2 माइनस 1 1 माइनस कॉस 4x dx। तो ये क्या आया? 1 बाई 8 इंटीग्रेशन 1 मतलब क्या? 1 इंटू dx मतलब dx माइनस 1 बाई 8 इंटीग्रेशन cos 4x dx। अच्छा, इंटीग्रेशन के बारे में एक बात बोलते हैं। जैसे हम लोग मान लो डेरिवेटिव में क्या करते थे, मान लो कहीं आ गया ddx ऑफ sin 2x, तो क्या लिखते थे चेन रूल के अनुसार? 2 cos 2x मतलब cos 2x इंटू 2। इंटीग्रेशन में ये जो बाई इंटू करते थे वो बाई में होगा। जैसे मान लो कहीं आगे इंटीग्रेशन बता रहे, तो 1 बाई 8x 1 बाई 8 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? प्लस साइन होता है, माइनस साइन नहीं होता है, याद रखना। तो ये जो 4 है कांस्टेंट है, वो यहां पे इंटीग्रेशन में क्या होगा? डिवाइड होगा। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते थे, cos 4x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन 4x इंटू 4। cos 4x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन 4x इंटू 4। इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है? साइन 4x प्लस साइन 4x डिवाइड बाई 4, मतलब माइनस नहीं रहेगा और जो इंटू है वो डिवाइड हो गया। तो क्या बना? इज इक्वल टू x बाई 8 माइनस 1 बाई 32 साइन 4x प्लस c। so this is the question. so okay, अच्छा, now next sum, very interesting sum. so please note all the questions from the video, from the mobile, and so in your copy practice this and much more from your book, whatever book you are using. Okay, next sum, x4 plus 1, question number 6, x4 plus 1 by x square plus 1 dx। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं? x4 minus 1 plus 2 by x square plus 1। Mind it, there is no u by v rule। अगर ये डेरिवेटिव होता तो आराम से हम लोग u by v rule मान लेते हैं, ये इंटू इसका डेरिवेटिव, ये इंटू इसका डेरिवेटिव हो गया। बट देयर इज नो u by v rule, so you have to apply the tricks। okay, x square minus 1 x square plus 1 by x square plus 1 plus 2 by x square plus 1 dx। ओके, तो ये कट गया, x square dx माइनस dx प्लस 2 1 by x square plus 1 dx। ओके, ये कट गया, x स्क्वायर माइनस 1, तो इसको अलग कर दो, x स्क्वायर अलग माइनस 1 अलग और ये टर्म को अलग कर दिया। अब क्या करना है? यही फॉर्मूला अप्लाई करो, तो क्या होगा? x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x क्यूब बाई 3, और अभी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं इंटीग्रेशन dx होता है,
प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c, जस्ट c। ओके, तो दिस ट्रिक्स, ये जो ट्रिक्स है ये सब थोड़ा प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, ये सब तुम लोग को सीखना है। ये डेरिवेटिव जैसा नहीं है कि आराम से u बाई वी मार दिए हो गया बिना कुछ सोचे, नहीं, यहाँ पे तुमको डिनोमिनेटर को हटाना है और इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में ले आना है। ठीक है, इंटीग्रेबल फॉर्म में ले आना मतलब जैसे मैं एक सम कर रहा हूं, एक्स्ट्रा नंबर जो भी दे दो, 7 ही दे दो, क्या फर्क पड़ता है। इफ यू आर नॉट रिटन प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में क्या अंतर है। जैसे सपोज हम बोल दिए y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, चेन रूल लगा देंगे, 2 cos x sin x, 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स, कहानी खत्म, है ना। 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स मतलब माइनस साइन 2x, जो भी कह लो, ओवर गॉन, आंसर आ गया। बट द थिंग इज नॉट सो सिंपल इफ इट इज इंटीग्रेशन। अगर ये इंटीग्रेशन में आ गया तब क्या करोगे, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई चेन रूल इंटीग्रेशन में नहीं है। चेन रूल से क्या देखे थे, कोई भी पावर हो, कोई भी फंक्शन हो, उसको हम लोग कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ रूल यहां नहीं है। तो क्या किया जाए, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंटीग्रेबल फॉर्म, इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कैसे, अभी जो फॉर्मूला लिखे थे इसको तुमको लिखना होगा, cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx, ये हो गया इंटीग्रेबल फॉर्म, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। तब क्या होगा, अब ये 1 बाई 2 dx, अच्छा 1 बाई 2 कॉमन लेते हैं, प्लस इंटीग्रेशन cos 2x dx। ठीक है, क्लियर। तो क्या मिला हमको, ये इंटीग्रेशन dx क्या होता है x, और यहां से क्या मिलेगा sin 2x बाई 2, याद रखना cos का डेरिवेटिव प्लस साइन, नॉट माइनस साइन, प्लस c। ओके, तो अब ये बात तुमको सोचना पड़ेगा कि क्या डायरेक्ट नहीं कर सकते, नहीं, अगर cos क्यूब x है तो cos 3x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। cos 3x का फॉर्मूला क्या है, cos 3x का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो अगर तुमको बोला, सपोज द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन cos क्यूब x, डेरिवेटिव में प्रॉब्लम नहीं है, डेरिवेटिव cos क्यूब x चेन रूल, cos का पावर 100x चेन रूल, पर cos का पावर 100x का इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो cos क्यूब x का क्या करेंगे, बोलो क्या होगा, 1 प्लस, अब इसमें क्या होगा cos 3, अच्छा 1 तो क्यूब है ना, तो यहां से cos क्यूब x को फंक्शन करो, cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4। अब तुम इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसका इंटीग्रेशन कर लो, यू विल गेट द आंसर। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम एंड डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में हम लोग के पास एक बहुत ब्रह्मास्त्र है, चेन रूल, by which we can apply some, do any sum, but something like that is not here. So you have to, that is why it is a very tricky part, and I am teaching you this part very slowly so that you can learn step by step everything which is necessary here and master on this, because it is important, especially if you are opting for the JEE and all this, you have to master on this topic, integration, very well. Okay, now we are going to the next sum. Question number 8. x4 plus x square plus 1, अच्छा x4 plus x square plus 1 by x square minus x plus 1 dx. Okay, this is the sum. फिर से वही रूल, u v रूल तो है नहीं, u by v। अब ट्रिक लगाया जाए, देखते हैं यहाँ क्या ट्रिक लग सकता है। x4 प्लस, अच्छा इसको लिखो ऐसे, x स्क्वायर का होल स्क्वायर
2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर हो गया, नहीं हुआ, यहाँ पे 2x स्क्वायर आ गया, पर यहाँ पे दिया हुआ कितना x स्क्वायर, तो ये माइनस x स्क्वायर लिख दिए और डिनोमिनेटर को नो चेंज। तो ये क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और ये क्या है, ये तो पहले से ही है x का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। नाउ यू सी, अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x बाई x स्क्वायर माइनस x, इसको भी मैनेज कर सकते हैं, प्लस 1 माइनस x, क्या फर्क पड़ता है। ओके, वी कैन अरेंज दिस, इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये और ये कट गया। अब अलग अलग कर लो, x स्क्वायर dx प्लस x dx प्लस 1 dx, क्या मिलेगा, x क्यूब बाई 3, सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला, फिर से वही, n के जगह 1, x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन dx, यू नो वेरी वेल नाउ, प्लस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर बहुत कुछ है। इफ यू नो द ट्रिक, ट्रिक जानना जरूरी है कि किस सम को कैसे डील करना है। दैट इज व्हाई आई एम शोइंग यू मैक्सिमम टाइप ऑफ सम। नाउ सिमिलर सम यू प्रैक्टिस फ्रॉम योर बुक। ओके, लास्ट सम इन दिस वीडियो, वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट सम। Okay, now question is integration sec square x cosec square x dx। ओके, अब देखो sec square x का अलग से फॉर्मूला है tan x, पर यहाँ पे इंटू में दे दिया है, तो इस इंटू को तोड़ना होगा, अलग करना होगा। हमको कुछ ऐसा करना होगा ये इंटू जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, कैसे होगा देखा जाए, या कुछ और चीज में आ जाए। इसको मैं क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, क्या लिख सकते हैं। तो व्हाट इज sec स्क्वायर, 1 बाई cos स्क्वायर, व्हाट इज cosec स्क्वायर, 1 बाई sin स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, ये आ गया। ओके, अब ट्रिक आ रहा है, क्या ट्रिक आ रहा है, इस 1 के जगह लिखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x dx। Okay, clear? We know from trigonometry, sine square, from class 9 you are studying this formula, class sin square x plus cos square x equals to 1. Okay, class 9, 10, 11 सब क्लास में पढ़े। अब इसको अलग करो, sin square x by cos square x into sin square x plus cos square x by cos square x into साइन स्क्वायर। तो ये कट गया, ये कट गया, तो इंटीग्रेशन 1 बाई cos स्क्वायर क्या होगा, sec स्क्वायर x dx और cosec स्क्वायर x dx। तो कर लिए ना, इंटू साइन को प्लस में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, अब क्या है, अब तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर क्या होता है, सॉरी tan x, और ये क्या होता है माइनस कॉट एक्स, तो प्लस माइनस माइनस कॉट एक्स, एंड डोंट फॉरगेट द सी, दैट इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो बस यही हुआ आज के वीडियो में, इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो प्लीज practice these sums and much more from your textbook. Okay, and we'll meet soon in the next video. Okay students, till then have a nice day.